والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. بھائیوں، کل ہم لوگ کس کے بارے میں، کس کی پیدائش کے بارے میں سنے؟ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور یحییٰ کی پیدائش اور ان کی تاریخ کے سلسلے میں سنے. ایک بات یاد رکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. قرآن مجید میں صرف عیسیٰ کا نام 25 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کا نام کتنے مرتبہ آیا ہے؟ 25 مرتبہ آیا ہے. اور ان کی ماں کے نام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا نام 23 مرتبہ 23 ٹائمز آیا ہے. اور مسیح لقب کے نام کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا نام 11 مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے. ایسا بے شمار مرتبہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے. اور اللہ نے کہا، اور حضرت عیسیٰ کی انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی خاندان سے تھے، ان کے انتقال کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے. 600 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 600 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو بھیجا. وہ نبی کون؟ میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ بات ہم جانتے ہیں. اچھی بات، کل ہم لوگوں نے جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے گود سے ہی بولنے کا طریقہ سکھایا. ماں کے گود ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، تقریر کی، سب ہوا. اچھا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں کی گود میں بات کیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں کی گود میں بات کیے. ایک تو کل ہم لوگ نے جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دوسرے کوئی جانتے ہیں؟ واقعہ بہت بڑا ہے. بنی اسرائیل میں ایک ان کا نام تھا جریج، اور ایک وہ بھی بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے. یہ 3 ہی واقعے ایسے ہیں جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں، اور صحیح حدیث کی روشنی میں یہی 3 واقعے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں، وہ واقعے یا تو ضعیف ہیں یا تو ان کے اندر علماء نے کلام کیا ہے. دوسرا واقعہ بنی اسرائیل کا، وہ یہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا، ان کا نام تھا جریج. بڑے عبادت گزار، بڑے عابد، بڑے زاہد، اللہ سے ڈرنے والے. ہمیشہ ان کا ایک کنیسہ تھا، مٹی کا ایک جھوپڑی، ایک کوٹم کی طرح بنا کر رکھ لیے تھے. اس کے اندر ہمیشہ عبادت کرتے تھے. ایک مرتبہ ہوا ایسا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ان کی ماں نے ان کو بلایا. جریج آؤ. نماز میں تھے، پریشان ہو گئے، کیسا جانا؟ نماز توڑ کے، عبادت چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے. پریشان ہو گئے، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آیا. آخر کار ان کی عبادت مکمل کر کے، ان کی نماز مکمل کر کے ان کی ماں کے پاس گئے. تو ماں ہوتی ہے، یقیناً بلانے پر نہیں آئے تو ماں کو غصہ آتا ہے. ہر ماں وہی ہوتی ہے. غصے میں آ کر ماں نے بددعا دی. دیکھیے، اسی لیے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جتنے بھی اولاد ہیں، اگر ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری ماں ہے خاص کر، تو ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ماں کوئی بھی حکم دیتی ہے، کوئی بھی کام کرنے کو کرتی ہے تو یقیناً اس کام کو کرنا. لیکن اگر کوئی ایسا حکم ماں دیتی ہے جو شریعت میں نہیں ہے، جو دین میں نہیں ہے، جو اسلام ہم کو نہیں سکھاتا ہے، اگر ایسا حکم دیتی ہے تو کیا اس کو عمل کرنا یا نہیں کرنا؟ نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے درجے کے بعد سب کا درجہ ہے. پہلے اللہ رب العالمین کا درجہ ہے. ماں کتنا بھی بڑا حکم دے، اگر وہ حکم شریعت کے برابر ہے تو مان لینا چاہیے. شریعت اس کا حکم نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا. اب اللہ نہ کرے ماں کیا ہے، بچے کو شرک کرنے پر ابھارتی ہے. اگر بچہ ماں کی بات نہیں مانا تو روتی ہے، دھوتی ہے، ایسے ویسے بہانے بناتی ہے. کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے حکم کے بعد ساری چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہی ساری چیزیں. اچھی بات، بلائی نہیں گئے تو ان کی ماں نے ان کو ایک بددعا دی. وہ بددعا کیا تھی؟ اے اللہ، اس بچے کو جب تک موت نہ دے، جب تک یہ بچہ کسی زانیہ سے نہ ملے، کسی زانیہ سے، یعنی کسی زانیہ سے شادی نہ کر لے.
जानिया से शादी करके जानिया से शादी करने के बाद ही या उससे मिलने के बाद ही इसकी मौत हो, ऐसी बद्दुआ माँ ने दे दी। अल्लाह का करना ऐसा। कुछ दिनों के बाद इनका काम ये करते थे, एक औरत थी, एक औरत जानिया औरत थी। ये जुरैज जो इबादत गुजार थे, इबादत करने वाले थे, हमेशा इबादत करते थे, बड़ा सज धज के खूबसूरत बन के अच्छे कपड़े पहन के उनको आकर उनको फिसलाने की कोशिश करती, उनको अपने जाल में बिछाने की कोशिश करती। लेकिन ये जुरैज जो थे बड़े इबादत गुजार थे, बड़े अल्लाह वाले थे, अल्लाह से डरने वाले थे, इसकी जाल में नहीं आए। अभी औरत मस्ती से क्या करी, किसी न किसी तरह करके मैं इसको बदनाम करना, इसके ऊपर मैं इल्जाम लगाना। क्या करी, कुछ दिनों के बाद एक चरवाहा था, बकरियों को चराने वाले को चरवाहा कहते हैं, उससे मिली, उससे गलत ताल्लुकात को करके, उसके साथ गलत ताल्लुकात को बनाकर उसके साथ जिना करी और हमल ठहर गया। हमल ठहर गया। ये जानिया औरत के साथ क्या है, वो चरवाहे के साथ गंदा काम करने की वजह से इस औरत को हमल ठहर गया। अब हमल ठहर गया, बाद में बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद उस बच्चे को औरत क्या कहती है, ये बच्चा जुरैज का बच्चा है। ये बच्चा किसका है, जो इबादत गुजार था उसका बच्चा है, जुरैज का बच्चा है। गांव वाले पूरे परेशान, भाई दिन पूरा ये आदमी मस्जिद में बैठ के इबादत करता, नमाज पढ़ता, हमेशा यहीं पर रहता, रात में इतना गंदा काम करता। बुला कर बिठाकर पूरे गांव वाले मारना शुरू कर दिए, पूरे गांव वाले पीटना शुरू कर दिया, खूब मारे। उनको मालूम भी नहीं कहीं को मार रहे। बाद में गांव वाले को पूछे, क्यों मार रहे हो जी मुझे, इतना ज्यादा मारकर मेरी हालत खराब कर दिए हो तो क्यों? तो उस वक्त गांव वाले कहते हैं कि आपने ऐसा गलत काम किया, आपने उसको बच्चे को पैदा किया। ये सुनते ही परेशान हो गए, बोले रुक जाओ रुक जाओ। गए, वजू का पानी मंगाया, वजू किए, 2 रकात नमाज पढ़ के क्या करे, दुआ की अल्लाह रब्बुल आलमीन से। उसके बाद बोले कौन है बच्चा, बच्चे को लेकर आओ, बच्चे की माँ को लेकर आओ। बच्चे की माँ को भी लेकर आए, बच्चे को भी लेकर आए। अब बच्चे के सामने बैठकर ये जुरैज सवाल करते हैं, मनिल वलदु या गुलाम, ऐ गुलाम, ऐ बच्चे जरा बता तेरा बाप कौन है। मनिल वालिदु या गुलाम, वो बच्चा कहता है मुंह खोलकर कि मेरा वालिद ये चरवाहा है। माँ 3-4 दिन का बच्चा, कितने दिन का बच्चा, 3 से 4 दिन का बच्चा, इतना ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करिश्मा देखिए, खुदरत अल्लाह रब्बुल आलमीन की देखिए। जो बंदा नेक होता है, जो बंदा अल्लाह का होता है, चाहे किसी भी कौम का हो, जो बंदा अल्लाह का होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर आंच भी आने नहीं देता। मदद किया नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला, मदद करके बताया। आज हम छोटी मोटी परेशानियों में परेशान होते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 वाकये हुए। तीसरा वाकया इसी बनु इसराइल से। देखिए बनी इसराइल के लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कितनी नेमतें उतारा था, और जो मुर्दों को जिंदा करने के वाकयात भी हमने सुना, 5 वाकयात, उसमें से 3 वाकयात पूरे बनु इसराइल ही के थे। अब ये जो बच्चे बात किए, छोटे छोटे 2 बच्चे, ये भी बनु इसराइल के, अगर मिला लिया जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम थे तो वो भी बनी इसराइल ही में आ जाएगा। पूरे बनु इसराइल ही में करामतें, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का करिश्मा हुआ। तीसरा, एक मर्तबा एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चा दूध पीता, बच्चा कितने दिन का होता, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 1 महीना या 2 महीने, कोई भी हो, बच्चा दूध पी रहा था। अचानक अपने बच्चे को जब दूध पिला रही थी तो दरमियान से एक आदमी अपनी सवारी पर, या तो घोड़े पर या गधे पर, किसी पर भी सवारी पर वहां पर गया। जैसे ही गया, वो आदमी बड़ा मालदार था, उसका नाम था महल्ले में, लोग उसको मानते थे, लोग उसकी इज्जत करते थे, लोग उसकी कदर करते थे, लोग उससे डरते थे। जैसे ही वो आदमी गया, अब माँ होती, हर माँ की यही ख्वाहिश होती कि मेरा बच्चा मुस्तकबिल में, फ्यूचर में उसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, मेरा बच्चा मालदार होना, मेरे बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी, हर माँ की ख्वाहिश होती नहीं होती, हर माँ की यही ख्वाहिश होती। फौरन वो औरत अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाहुम्मा इजअल मिसला, ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चे को इस आदमी की तरह बना, ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चे को इस आदमी की तरह बना। जैसे ही वो औरत के जबान से ये कलिमा निकला, ये बात निकली, ये अल्फाज निकले, फौरन दूध पीता बच्चा अपनी माँ की जो छाती से रखकर दूध पी रहा था, छोड़ दिया, कहने लगा अल्लाह मत बना मुझे इस तरह। माँ परेशान। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चे को अपने छाती से लगाती है, सीने से लगाती है, दूध पिलाती है। एक लौंडी औरत
एक खातून वहां से गुजरती है और वो औरत कहती है अपनी माँ की, माँ होती है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को इस औरत की तरह मत बना। फिर बच्चा माँ की जो छाती से लगकर दूध पी रहा था, दूध को छोड़कर कहता है अल्लाह तू मुझे इस औरत की तरह बना। बच्चा छोटा माँ की गोद में है, दूध पी रहा है, उस बच्चे से अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्फाज निकाल रहा है, सुभान अल्लाह। उस वक्त बच्चे से माँ सवाल करने लगती है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों करता है, ऐ बच्चे तू मुझे क्यों मेरी नाफरमानी करता है। तो उस वक्त वो बच्चा कहता है, ऐ अम्मी जान, सबसे पहले जो आदमी गया, गरचे आदमी मालदार था, मैं मानता हूं, आदमी दौलतमंद था, उसका नाम था, लेकिन वो आदमी जालिम था, लोगों को सताने वाला था, लोगों को कत्ल करने वाला था। इसीलिए मैंने अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह तू मुझे उसकी तरह मत बना। यहाँ से उसके बाद जो खातून गई, जो औरत गई, जो लौंडी गई ना, वो लौंडी, उसको लोग चोर कहते थे, कोई उसको जानिया कहते थे, लेकिन वो जो औरत गई, वो औरत बड़ी इबादत गुजार थी। क्या थी वो औरत? बड़ी इबादत गुजार थी, बड़ी अल्लाह वाली थी। इसीलिए मैंने भी कहा कि अल्लाह तू मुझे किसकी तरह बना? उस औरत की तरह अल्लाह तू मुझे बना। ये 3 वाकयात, उसके बाद यही 3 वाकयात सही हैं। एक वाकया कुछ लोग कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का, कि अगर कमीज फटकर है तो उधर और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनहगार हैं या नहीं है, तो ऐसा कुछ, ये वाकया ज़ईफ है। उसके बाद एक अस्हाबुल उखदूद का एक वाकया, एक बादशाह क्या है, आग का अंगार गड़ा खोदता है और उसके माँ के हाथ में एक बच्चा होता है, और क्या है, बादशाह अपने उस औरत को क्या है अंगार में डालने की कोशिश करता है, तो उस वक्त बच्चा कहता है अल्लाह आय अम्मी जान आग में कूद जाओ। ये वाकया थोड़ा ज़ईफ है, लेकिन यही 3 वाकयात सही हैं, याद रख लीजिए। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यहां से ये वाकया मुकम्मल हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद अल्लाह तबारक व ताला, अभी 5 या 6 साल या 7 साल की उम्र के थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व ताला बड़ी अकल दिया था, बड़ी हिकमत की बातें करते थे। बच्चा छोटा लेकिन बातें बड़ी बड़ी, अकल वाली बातें, हिकमत और दानाई वाले बातें। सारे लोग परेशान हो गए, भाई इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी अकल की बातें, इतनी बड़ी बड़ी बेहतरीन बातें कैसे करता है। लोगों को समझ में नहीं आया। वहां पर उनका एक बादशाह था, जाकर उस बादशाह को कहने लगे, क्योंकि यहूदी थे, यहूदियों का काम ही यही कि अंबिया को कत्ल करना, किसी को चैन से रहने नहीं देते थे, किसी को सुकून से रहने नहीं देते थे। जाकर बादशाह को बोले, ऐ बादशाह खबरदार हो जा, ऐ बादशाह खबरदार हो जा, एक छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, बड़ी बड़ी बातें करता है, बाद में एक वक्त ऐसा आएगा तेरी बादशाहत को भी छीन लेगा, तू डर जा। अब बादशाह परेशान, किसी न किसी तरीके से इस बच्चे को भी कत्ल कर देना। अब ये हजरत मरियम कौन थी? हजरत ईसा की माँ थी। तो समझ में आ गया उनको, नहीं, वहां से निकल गई, मिस्र को चले गई, फलस्तीन से निकलकर, शाम से निकलकर मिस्र चले गई। बाद में ये बादशाह जब उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया, मालूम हुआ, तो आई अपने बच्चे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर आई। जैसे ही आई, पता चला उस वक्त वहां पर बादशाहत किसकी थी? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बादशाह थे, उनको भी यहूदियों ने कत्ल किया। बाद में हजरत यहया अलैहिस्सलाम को बनाया गया, अब उनको भी कत्ल किया। अगर हम हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल के वाक़ये को सुनेंगे ना, वल्लाह हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इंसान परेशान हो जाएगा। उनको कैसा प्लान बना के मारा गया, अल्लाह रहम करे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को बोलूं वाक़या, बोलूं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम, जब एक मर्तबा एक बादशाह था, उसका नाम था हद्दा बिन हजरा, एक बादशाह था, एक औरत से शादी किया था। अचानक कुछ लड़ाई, कुछ झगड़े की वजह से तलाक हो गया। क्या हो गया? तलाक हो गया। अब तलाक होने के बाद उसका दिल नहीं माना, दोनों का दिल करा के अफसोस हुआ, दोनों को फिर मिल लेना चाहिए। अब लोगों को फतवा पूछने गए, यहाँ पूछे वहां पूछे, इधर फतवा उधर फतवा, कोई भी जवाब नहीं दिए। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के पास आए।
आकर फतवा पूछने लगे तो हजरत यहिया ने कहा कि आपको मिलने की इजाजत नहीं है, आपका हलाल यानी आपकी जो मुद्दत है वो हुई नहीं है, आपको अभी नहीं मिल सकते दोनों। जो बादशाह की बीवी थी बहुत गुस्से में आ गई, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, तैश में आ गई, मस्ती और गुरूर और घमंड में आ गई। हजरत याहिया को मारने का प्लान बना ली, कत्ल करने का प्लान बना ली और बाद में बादशाह को अपने शोहर को मनाकर उसको कहने लगी कि किसी ना किसी तरीके से इस याहिया को कत्ल कर दो, उसकी गर्दन उड़ा दो। कुछ लोगों को बोली। अब याहिया जब अपने घर के अंदर इबादत कर रहे थे, नमाज की हालत में थे, तो बाद में आकर कुछ लोगों ने उनकी गर्दन को उड़ा दिया और वो औरत कहने लगी मैं बादशाह के दरबार में बादशाह की कुर्सी में बैठूंगी और मुझे आप लोग लाकर एक तश्त में उस बच्चे हजरत याहिया की गर्दन को लाकर मेरे सामने पेश करना। वैसा ही किया गया। बनी इसराइल के लोग इतने खतरनाक थे, अंबिया को कत्ल करते थे। अंबिया हक बात उनको क्या है हजम नहीं होती थी। हक बात अगर कोई लाकर उनके सामने रखता तो उसको मानते नहीं थे। अंबिया को तो कत्ल किए, हजरत यहिया को, जकरिया को, कितने लोगों को कत्ल किए, यहां तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का प्लान बनाए। लेकिन रब्बुल आलमीन की कुदरत बड़ी थी, इंशाल्लाह आगे कहूंगा। बाद में कत्ल हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस बैतुल मक़दिस में आए। आने के बाद दावत का काम शुरू की। एक बात यहां पर याद रख लो, अल्लाह तबारक व तआला जितने भी अंबिया थे हर नबी को कितने साल की उम्र में नबूवत दिया? सबको मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला हर नबी को कितने साल की उम्र में नबूवत दिया? कितने? 40 साल की उम्र में नबूवत दिया। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 30 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत से सरफराज किया था। जवान थे, बहुत ज्यादा काम करते थे। जब बैतुल मक़दिस में आए तो पूरे जितने लोग थे जल्दी जल्दी तौरात और इंजील पर ईमान लाते थे, हजरत ईसा की बात को मानते थे। वो जो भी कहानत का काम करते थे वो सारा यहूदियों को छोड़कर, उनके कामों को छोड़कर हजरत ईसा पर ईमान लाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी बन जाते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहना पसंद करते थे, हजरत ईसा के मजहब को मान लेते थे। तो उस वक्त वहां का जो बादशाह था, कुछ लोग थे 3 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर बहुत सारे लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात को मान लिए और यहूदियों की अपनी दीन को छोड़कर नसारा बनने लगे। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई ये लोग क्या है, सारे के सारे ईसा की बात को मान रहे हैं और यहूदियत को छोड़कर नसारा को अपना रहे हैं, यानी नसरानियत को अपना रहे हैं, हजरत ईसा के मुत्तबी बनते जा रहे हैं। क्या तो भी करना, मारने का प्लान बनाना। अब प्लान बनाए, मारने की कोशिश करें। लेकिन वहां पर एक बादशाह था, कुछ लोग बादशाह प्लान बनाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक शागिर्द था, उसको बुलाए। उस शागिर्द का नाम है इस्क्रोएती था, इस्क्रोएती उसका नाम था। 30 दिन हम उसको दिए, देकर बोलने लगे कि जब भी ईसा कहाँ भी जाएगा आप आकर पूरी बातें हमको बोलना, यहाँ कर रहा है, यहाँ जा रहा, उधर जा रहा, इधर जा रहा, वो कर रहा है, कुछ भी करे आप हमको आकर उसका इत्तला देना। ठीक है, दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा फलस्तीन के अंदर उनका एक त्योहार होता, एक ईद था, ईद होती थी, उस ईद के अंदर जमा हो गए। हजरत वहां पर खाना खाना था, खाना खा लिए, खाना खाकर वहां से एक मकाम से निकल गए। जैसे ही निकल गए, निकलकर अपनी 11 हवारियों के साथ एक मकाम था, एक शहर, एक गांव था। उस गांव के अंदर, वो गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस गांव के मकाम पर रुक गए, वहां पर जमा हो गए। जैसे ही ये जो आदमी था, इस्करियोती जो आदमी था, गया, जाकर बोला कि ईसा वहां पर है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भनक लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपको मालूम हो गया कि लोग मेरी जान के ऊपर खतरा है, किसी न किसी तरीके से ये लोग मुझे मारेंगे, मुझे कत्ल कर देंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 11 हवारी यानी 11 साथी, उनके 11 शागिर्द थे। उनमें से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, कौन है जो मेरी शक्ल इख्तियार करना चाहता है और मेरी शक्ल इख्तियार करके अल्लाह की राह में कत्ल होना चाहता है? एक नौजवान आदमी, उनके जो 11 हवारी थे, उसने हाथ उठाया। फिर हजरत ईसा ने कहा,
फिर वही आदमी हाथ उठाया, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया तो उस वही जवान बच्चा हाथ उठाया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो अब मेरे अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएगा, कल क़यामत के दिन वो आदमी मेरे साथ कहां पर होगा, कहां पर होगा, जन्नत में होगा। आए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जवान बच्चे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत दे दिया, और लोगों ने आकर उसको कत्ल कर दिया, राते रात में कत्ल कर दिया। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला का फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस छत को तोड़कर उसको एक अलमारी की तरह, एक खिड़की की तरह उसको बनाया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऊपर ले लिया। इसी को अल्लाह कहता है बर रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा को ऊपर उठा लिया। हजरत ईसा का कत्ल नहीं हुआ। ये लोग बड़े खुश थे कि हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, बल्कि कुरान कहता है कि हमने हजरत ईसा को, यानी अल्लाह ने हजरत ईसा को ऊपर उठा लिया। क्योंकि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए थे, किससे किससे मिले थे, हजरत जकरिया से भी मिले, याहिया से भी मिले, और ईसा से भी मिले। बाद में अल्लाह के नबी ने कहा कि ईसा वही है जो आएंगे, कब, क़यामत के करीब आएंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर के गोश्त को हराम करार देंगे। ये सारी बातें बाद में ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग हजरत ईसा की बात को मानेंगे, लेकिन कौन सी दावत देंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, दीन मोहम्मद दी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन को छोड़कर गए थे वही दावत को आकर उम्मती बनकर आएंगे। क्या बनकर आएंगे, उम्मती बनकर आएंगे, दावत देंगे, लोग उनकी बात को मान लेंगे। यहां तक ये सारे वाकयात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत आल इमरान में, अगर कोई सूरह आल इमरान को गौर के साथ, मानी के साथ, मतलब के साथ पढ़ेगा तो बहुत सारे वाकयात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे रखे। अगर यकीनन कुरान मजीद को मानी के साथ पढ़ना, मतलब के साथ पढ़ना, कुरान मजीद को अगर इंसान गौर व फिक्र कर लेगा, यकीनन आदमी मुवहिद बन जाता, तौहीद परस्त आदमी बन जाता। क्या अल्लाह अकबर, कैसा जज्बा उनका था, कैसी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कैसा तवक्कुल वो लोग करते थे अंबिया। अल्लाह अकबर। कल मैंने कहा था हजरत जकरिया जब हजरत मरियम को देखे कि अल्लाह तबारक व तआला बेमौसम फल दिया था तो दुआ भी किए थे, अल्लाह तू बेमौसम फल देता है तो बेमौसम औलाद क्यों नहीं देता, दिया नहीं दिया अल्लाह तबारक व तआला। क्या मालूम है इससे, तवक्कुल, भरोसा, उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला पर अगर रख कर मांगेंगे, अल्लाह तू ही देने वाला है, अल्लाह पैदा तू मुझे किया, आसमानों और जमीन को अल्लाह तूने पैदा किया, तो फिर अल्लाह मेरी रोजी रोटी का जिम्मेदार भी तू ही, अल्लाह दे, अल्लाह पूछिए, हक है हमारा पूछने का, पूछिए अल्लाह तबारक व तआला से। यकीनन परवरदिगार बरकत की बारिश, बरकत की रहमत की बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल करेगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है इलाहुल आलमीन हम तमाम को कुरान मजीद को सुनने और उसको गौर के साथ पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।